is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves, as said by Jawaharlal Nehru. So good morning, my dear students. I hope everybody is doing good. So tomorrow we are taking up a poem which is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So here is a small presentation. I hope you all are going to enjoy it. So first of all, let's say something about the poet. Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. Known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. Okay. So Robert Frost was a person who basically wrote about the rural life of America, and colloquial speech का मतलब होता है local language. Okay. Frost frequently wrote about the settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical theme. So रूरल लाइफ को उन्होंने जो सिटी की कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ होती है और फिलोसफिकल थीम्स होती हैं उससे को रिलेट करने की कोशिश की है. ठीक है. Now let us see some of his works and awards. So लेफ्ट साइड में उनके मेजर वर्क्स है लाइक अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग. ठीक है. और इनको बेसिकली 2 प्राइज अवार्ड्स मिले हैं, पुलित्ज़र प्राइज फॉर पोइट्री एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. So you have to write all this thing in your classwork copy. Okay. Now let us start with the poem. See, here is your poem. Let us see the first stanza. Okay, before seeing the first stanza, the overall view of the poem is that this is a well-known poem, is about making choices and the choices that shape us. Okay, कि आपकी choices जो रहती है वो ultimately determine करती है who you are going to be in future. Okay, see the first stanza now. 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि वो कहीं जा रहे थे एंड देयर ही सॉ 2 roads diverging in a yellow wood. ठीक है. डाइवर्जिंग मतलब 2 रास्ते, इस तरीके से 2 रास्ते थे एंड he was standing here. You can imagine this. He was standing here and there were 2 roads diverging. Yellow wood का मतलब होता है a degrading forest or a forest which is having autumn season. मतलब जहाँ पे पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो झड़ रही है. ठीक है. येलो जो है वो autumn season को बता रहा है and wood means forest. ठीक है. तो ऐसे एक डाइवर्जिंग पाथ पर द ऑथर इज स्टैंडिंग and he is saying, and sorry I could not travel both and be one traveler, because he was a solo traveler, so he couldn't travel on both the roads at the same time. Long I stood and looked down one as far as I could. So he was standing there for a long time and looking and observing each of the roads to where it bent in the undergrowth. Undergrowth का मतलब होता है, this undergrowth means dense forest. ठीक है. तो वो तब तक हर एक रोड को देख रहे थे जब तक जो रोड है वो डेंस फॉरेस्ट में बेंड नहीं हो जाता, मतलब गुम नहीं हो जाता, एकदम उसके एंड तक खड़े होकर दोनों रोड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे. ठीक. अभी इस स्टैंजा का रियल लाइफ में जो है अपन एनालिसिस यदि देखें तो ऐसा होता है दैट अ लॉट ऑफ टाइम हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमें
चॉइसेस मिलती है, 2 चॉइसेस मिलते हैं जिसमें से एक हमें चूज़ करना होता है. सो वी वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑब्जर्व बोथ द चॉइसेस एंड थिंक ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन मेक आवर डिसीजंस, राइट. तो ये फर्स्ट स्टैंजा वही बता रहा है. सी द सेकंड स्टैंजा. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. ठीक है, यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं. Then took the one. So he was standing on this diverging path and finally he took one road. ठीक है, सपोज उन्होंने ये वाला पाथ चूज कर लिया. So he took one road as just as fair. ठीक है, उनको लगा दैट दिस पाथ लुक्स टू बी फेयर, मतलब ठीक ठाक लग रहा है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड दिस पार्ट इज हैविंग बेटर क्लेम दैन दिस वन, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. ग्रासी मतलब कि उस पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी. वॉन्टेड वेयर मतलब उसके ऊपर अभी तक कोई चला नहीं था, वो रास्ता चाहता था कि उसके ऊपर कोई चले. ठीक है, वॉन्टेड वेयर का मतलब यह होता है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, बट व्हेन ही स्टार्टेड पासिंग व्हेन ही स्टार्टेड टू वॉक ऑन दिस रोड, कुछ डिस्टेंस के बाद उनको ऐसा लगा दैट बोथ द रोड्स वेर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, दोनों रोड्स जो थी उनको जैसे दिख रही थी अलग अलग, बट जब उन्हें एक बार चलना शुरू किया तो उनको दोनों रोड्स एक जैसी दिखी. ठीक है, अब इस स्टैंजा का रियल लाइफ डिपिक्शन क्या होगा कि जब हम एक चॉइस कर लेते हैं अपनी लाइफ में, सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड विद दैट चॉइस वी थिंक ऑफ द फर्स्ट चॉइस देन, कि अरे यार वो भी चॉइस तो अच्छी थी, वो वाला अपन चॉइस कर लेते तो शायद ऐसा होता वैसा होता, राइट. सो सच काइंड्स ऑफ कंफ्यूजिंग आइडियाज कम टू आवर माइंड व्हेन वी मेक अ चॉइस. ठीक. See the third stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now what the poet is saying कि उस morning में, that morning, both the roads were looking equal. कि जब मैं खड़ा होके उस डाइवर्जिंग पाथ पर खड़ा होकर के देख रहा था तो मुझे दोनों रोड्स सेम लग रही थी. ठीक है, उस मॉर्निंग पे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब कि जब ऐसे रास्ते पे जाते हैं जहाँ पे पत्तियाँ गिरी हुई हों और बहुत सारे लोग चल गए हों तो जो लीव्स रहती है वो ब्लैक टर्न हो जाती है. तो बोलते हैं कि दोनों ही रास्तों पे कोई भी ट्रोडन लीव्स नहीं थी, मतलब कि कोई भी खराब ब्लैक कलर हो गई हो ऐसी लीव्स नहीं थी. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि मैंने जो दूसरा वाला रोड है उसको दूसरे दिन के लिए रखा, कि मैं दूसरे दिन जाकर के उस रोड पे चलूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, और जबकि उन्हें ये पता था कि यदि वो एक रोड पे चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रोड आगे जाके फिर 2 डाइवर्जिंग पाथ में होगी, उसमें से फिर उन्हें एक चॉइस करनी होगी. तो इस तरीके से हमेशा आगे बढ़ा जाता है, कभी भी वापस नहीं आया जा सकता. ठीक है. आई डाउट इफ़ आई शुड कम बैक, वो ये बोलते हैं कि मुझे डाउट है कि मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा. अभी इसका रियल लाइफ डिपिक्शन अपन एक एग्जांपल से समझते हैं. दैट यू हैव ऑप्शंस ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन. ठीक है, अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सो स्टूडेंट्स आर हैविंग ऑप्शंस टू ईदर स्टडी ऑनलाइन और नॉट टू स्टडी एट ऑल. ठीक है, अभी जिन्होंने ये चॉइस की है कि हाँ हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो बाद में जाकर जब एग्ज़ाम्स आएंगे सो इट वुड बी मच ईजियर फॉर देम बिकॉज दे वुड हैव completed a lot of syllabus, right? But those who have chose to not to study at all, उनके लिए फिर वापस से सब कुछ स्टार्ट करना, वापस आना. ठीक है, वापस से सब कुछ स्टार्ट करना, फिर पीछे पीछे टीचर के भागना, फिर टीचर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी, फिर भी उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. तो जब आप एक चॉइस कर लेते हो तो उसके बाद में कम बैक का ऑप्शन नहीं होता है. इसलिए हमेशा जो हमारी चॉइस है इट शुड बी वेरी मच वाइज, कि हमेशा हमारी जो चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइज होनी चाहिए, बहुत ही समझदारी के साथ हमें अपनी चॉइसेस करनी चाहिए. सी द लास्ट स्टैंजा.
I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. ठीक है, ages and ages का मतलब होता है कि आफ्टर years and years, years and years के बाद में जो ऑथर है, जो पोएट है, वो ये सारी बातों को ये याद करेगा. साय, साय मीन्स डीप ब्रेथ. ठीक है, डीप ब्रेथ के साथ में याद करेगा दैट टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड्स डाइवर्ज हुए थे वुड में, एंड आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने चॉइस किया उस रोड का जो लेस ट्रैवल्ड थी. ठीक है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस एक चॉइस ने सारी डिफरेंस मेरे लाइफ में क्रिएट कर दी. अभी इस स्टोरी से ये समझ में नहीं आया है, इस पोएम से ये समझ में नहीं आया है कि पॉजिटिव डिफरेंसेस आए पोइट की लाइफ में कि नेगेटिव डिफरेंसेस आए, लेकिन उसकी एक चॉइस से ही सारे डिफरेंसेस उसकी लाइफ में आ गए. ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हमारी एक चॉइस से ही हमारे लाइफ का फ्यूचर डिसाइड होता है. ओके, हम स्टैंजा बाय स्टैंजा एक बार और एनालिसिस देखेंगे. See the analysis of stanza 1. Two roads diverge in wood, and the author is thinking which road to take. He stood long and watched till the end of each road. This symbolizes the kind of choices we get in our life and what we think about them. Check. Second stanza. The poet took the least traveled road but soon realized it was equally traveled. Same sometimes happen with us as well. When we make a certain choice, then we start thinking about the goodness of the first one, as I explained earlier. Third stanza. At the very start, both roads appeared same to him, but as soon as he moved ahead on one, he realized he wanted to try the other option. But it was not possible to come back and start afresh. Right? कि जैसे हम एक बार स्टार्ट कर देते तो कभी हम हमेशा आगे की तरफ जाते हैं, हमें हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, कभी भी कम बैक का ऑप्शन नहीं होता है. वी ओनली हैव ऑप्शंस टू मूव अहेड, वेदर इट्स गुड or not, but we have to move ahead. We never have an option to look back. Fourth one, the poet says that he will be remembering the time after years, that what he is today is because of the choices he made in his past. Okay, all right, this is a very strong message for the students कि आपका फ्यूचर जो है वो आपकी प्रेजेंट चॉइसेस पे डिपेंड करता है. सो ऑलवेज मेक चॉइसेस वाइजली. नाउ लेट अस लुक एट द एनालिसिस and the literary devices. What are literary devices? First of all, it is important to understand what are literary devices. Literary devices are the rules and structures which are used to make the poem or the story or the story more beautiful और emphasized. ठीक है, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं, सेम वही अलंकार जो हैं इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस कहलाते हैं. ठीक है, सी द फर्स्ट वन, राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम जो है आप लोगों को मैंने पहले भी समझाई है, बट स्टिल फिर से एक और बार समझा देती हूँ मैं. राइमिंग स्कीम क्या होता है? सी, राइमिंग स्कीम में आपको हमेशा जो स्टैंजा है उसके लास्ट वर्ड्स को देखना है. ठीक है, लास्ट वर्ड्स जो वर्ड राइम करते हैं उनको हम ABCD इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है, पहला वाली लाइन का वर्ड देखो, वुड. वुड किसके साथ में राइम कर रहा है? स्टूड और कुड. तो ये जो तीनों हैं ये ए हम डिनोट कर देंगे. उसके बाद सेकेंड लाइन में जो है बोथ, वो राइम कर रहा है अंडर ग्रोथ के साथ, तो उसको हम बी और बी
कर देंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए बी। ऑलराइट, सेम वे सेकंड स्टैंजा देखो। सेकंड स्टैंजा में फेयर, सेकंड स्टैंजा में फेयर इज राइमिंग विथ वेयर एंड देयर। इसका मतलब ए ए ए, ठीक। एंड क्लेम इज राइमिंग विथ सेम, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बी एंड बी। सो ए बी बी इज द राइम स्कीम, ठीक है। बाकी दो के आप खुद देखोगे, ओके। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द होल पोएम। कई बार राइमिंग स्कीम जो होती है वो स्टैंजा भी डिफर करती है, बट इस पोएम में राइमिंग स्कीम जो है थ्रू आउट द पोएम इज ए बी। Alright. Now the second literary device is assonance. Assonance क्या होता है? Repetition of vowel sound पूरे word में, ठीक है। वर्ड में कहीं पे भी यदि रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स होता है तो वहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है, ठीक है। लाइक ओ इन लुक्ड डाउन ऑन, ठीक है। लुक्ड डाउन ऑन जो है वो आपके कहाँ पर है? सी इन योर बुक, लुक्ड डाउन ऑन, फर्स्ट स्टैंजा, फोर्थ लाइन, लुक्ड डाउन ऑन। इसमें ओ साउंड का रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। ओ, यहाँ पे ओ साउंड का रिपीटेशन हुआ है। ओ इज अ वॉवल एंड दैट्स व्हाई देयर इज एसोनेंस इन इट, ठीक। एलिट्रेशन, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का प्रॉब्लम हो गई है, सो आप लोग ठीक कर लेना। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स प्लेस्ड कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है, पहला तो रिपीटेशन हो रहा है और किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। ये वर्ड है, उसके बिगिनिंग में यदि आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है तभी एलिट्रेशन होगा, ठीक है। एंड इन द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक रखे हुए हों, तो वो होता है। जैसे वांटेड वेयर, वांटेड वेयर कहाँ पर आता है आपका? सेकेंड स्टैंजा, थर्ड लाइन, वांटेड वेयर, इसमें डब्ल्यू व, ठीक है। दिस साउंड इज कमिंग विच इज अ कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, सी सम मोर। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बट एनीवेयर इन द वर्ड। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। बट कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का कहीं पे भी, वर्ड के कहीं पे भी, इन द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड कॉन्सिक्यूटिवली। बेसिकली जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है वो उन्हीं वर्ड्स पे लगते हैं जो लगातार रखे हुए हों, एक के बाद एक आ रहे हों, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइक टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड में कौन सा आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है? ड। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, ठीक है। डी साउंड आ रही है इसलिए, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन, मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और सिम्बॉलिक ऑफ समथिंग एल्स। मतलब कि किसी चीज़ का सिम्बलिज्म यूज़ किया गया हो उसको। जैसे येलो वुड, येलो वुड जो है अपन रियल लाइफ में यदि देखें तो यहाँ पे जो पहली वाली लाइन का मतलब ये भी है कि हमारे लाइफ में जो चॉइसेस मिलती हैं या फिर जो ऑथर जिस रोड पे जा रहा था वो रोड जो है वो एक ऐसे सिटी के बीच में थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बूढ़े लोग रह रहे थे एंड कंपैरेटिवली ही वाज वेरी यंग, ठीक है। येलो वुड का मतलब ये भी है इसमें कि बहुत ही ओल्ड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मेटाफोर जो है वो येलो वुड में यूज़ हुआ है कि येलो वुड जो है वो सिंबलिज्म है, सिंबलाइज किया है येलो वुड ने किसको? ओल्ड सिटी को, ठीक है।
सी द नेक्स्ट इमेजरी. इमेजरी जैसे कि नाम से समझ में आता है, ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे दिमाग में इमेजेस डेवलप होती हैं, ठीक है, वेयर वी कुड इमेजिन थिंग्स. सो दिस इमेजरी इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द पोएम. पूरे पोएम में पूरे शुरू से लेके एंड तक इमेजिन मतलब इमेजेस जो है हमारे दिमाग में आ रही हैं. कि पहली इमेज आती है डाइवर्स्ड रोड्स की, ठीक है, फिर इमेज आती है आपके ग्रासी पाथ की. तो इस तरीके से इमेजेस जो हमारे दिमाग में डेवलप हो रही हैं. Now see the next one, repetition. Repetition as the word suggests, where lines are repeated. जहाँ पे देखो ये दो है, repetition और anaphora. रिपीटेशन में क्या होता है, लाइंस का रिपीटेशन होता है. जैसे कि 2 roads diverged in wood, जो कि फर्स्ट लाइन भी है और उसको फिर लास्ट स्टैंजा में भी पोएट ने रिपीट किया है. पर एनाफोरा है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more लाइन्स. कि रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड का रिपीटेशन है. जैसे कि एंड वर्ड का रिपीटेशन है फर्स्ट स्टैंजा में 2, 3, 4 लाइन में, ठीक है. एंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और कहाँ पे रिपीट हो रहा है, लाइन की स्टार्टिंग में, तो उसे हम एनाफोरा कहेंगे, ठीक है. आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को. ठीक है. सो वी आर डन विद द पोएम. एक बार और मैं समराइज कर देती हूँ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट. द पोएम इज़ अबाउट द रोड और वेज इन which we neglect in our life. What are the feelings or consequences of it in future. The poem speaks about that. Now the roads So the roads are the choices that we make, and if we make a stupid or a nonsense choice, its result will also be bad. But if we make a very wise choice, it could frame our future in a good manner. All right. Now there are 3 important questions which you have to write in your classwork copy. ठीक है. थिंकिंग अबाउट द पोएम में जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन. ऑल द 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ बिकॉज दीज 3 क्वेश्चंस आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. इनके कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि किस तरीके से लिख सकते हैं. और वैसे भी जो आपकी पोएम्स है वो जब एग्ज़ाम में आएंगी तो उसके क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है. वो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे. सो आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन वेरी वेल आस्क. ऑलराइट, थैंक यू.